चन्नी जी की डिमांड 117 हल्के में हम देख रहे हैं। भी फिर चन्नी प्रधान क्यों नहीं, राजा ही क्यों? सभी नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनको अलग अलग टास्क करके आज आने वाले समय में वो काम की जिम्मेदारी को लेकर बढ़ेंगे। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ये बात कभी किसी ने नहीं कही। ਚੰਨੀ मुझे ਸਾਹਿਬ ਦੇ कोई- ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। जिस प्रकार से अमरिंदर राजा वरिंग जी जी के नेतृत्व में आम रास्ते पे आकर लड़ाई लड़ने का काम हो, जी। संगठन को मजबूत करने का काम हो, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्हीं के क्षेत्र में भी ये काम हुआ है। हाँ। मैंने कहा कि 117 हल्के में ये काम हो चुका है ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कि जिस प्रकार से कहीं अपेक्षा हो सकती है। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਈ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। नहीं नहीं, ये सर्वे कोई इंडिविजुअल सर्वे हमने नहीं किया। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं नहीं ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, जी। ਫਿਰ 3 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮਟਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। अब तो ये सजेशन सुनने के लिए बुलाया गया था। ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਥੋੜੇ, यस ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ? जी जी, बिल्कुल ही कतई नहीं। जो जो ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ। फॉलोइंग ਫਿਰ है। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰੁੱਸੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਆ? मुझे ये आप मीडिया के माध्यम से ही आज किसे- हम रेगुलर हमारे मीटिंग किसी चल ने रहे कोई हैं डिस्ट्रिक्ट में। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2027 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? आज हमने जिस प्रकार से कैंपेन कमेटी के माध्यम से जिनको चेयरमैन बनाया गया, हमारी टीम बोल के वो काम करेंगे ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ और उनका नेतृत्व ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। आज अमरिंदर सिंह राजा वरिंग है, प्रताप सिंह बाजवा है, राणा गुरजीत जी है। आज नहीं, के ये ਤੁਸੀਂ- सभी ਤੁਸੀਂ नेता। ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਗੂਗਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? मैं ਬਸ कभी ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। मैं कभी भी गूगली करने की बात यहाँ पे नहीं आती है। ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ। नहीं, ये लड़ना, मैंने कहा कि लड़ना ये कांग्रेस पार्टी जो आपस में लड़ेगी नहीं, ਤੇ बैठेगी ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਲੜਨਾ। नहीं। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਮਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸੰਗ ਢਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਆ। जो जिम्मेदारी हमको दी है वो सही तरीके से लोगों हाईकमांड तक पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य मैं समझता हूं और अभी तक वो काम मैं सीधी तरीके से करते आया हूं। काबिलियत के आधार पर अगर कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, ऑन मिनट होगा, परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बारी सारी बातें हो जाएगी। ਤਿੰਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ एकदम ਤੁਹਾਡੇ ये- ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ये तो जल्दी आप देखोगे कि हम सब लोग एक बस में दिखेंगे। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 2027 ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 21 ਤੋਂ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਓਪੀ ਸੇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ ਜੀ। ਡਾਲਵੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल, नमस्कार ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? जी, बहुत बढ़िया। आप ਕਾਂਗਰਸ सब ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? लोग- जी जी, कांग्रेस तगड़ी है। हम्म। पंजाब के लिए आने वाले समय में 2027 की रणनीति बनाने में कांग्रेस व्यस्त है। ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ? जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से ये जो खबरें चलाई जा रही है हाँ। और जो खबरें आ रही है, हम्म। मैं आपके सामने कुछ बातें आज बताना चाहूंगा जी कि जो बातें हैं, ये राजनीति कोई भी दल हो, जी इस बारे में ये बातें होती रहती है
लेकिन कांग्रेस एक पार्टी है जिस पार्टी में कभी भी डेमोक्रेटिक डिस्कशंस तरीके से आगे बढ़ना, जी, जब नया कुछ बदलाव होता है जी, तो इस कोई भी दल में जी, नहीं तो हमारे कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर पर ये बातों का जिक्र किया जाता है। जी, तो आज जिस प्रकार से बातें हो रही है, जी, मुझे लगता है कि हम सब लोग आज वही जो पुराने स्थिति में जी, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से 2027 को लेकर जनता, जी, जो हर कोने की एक आवाज, जी, पंजाब की जनता ये चाहती है कि 2027 में बदलाव चाहिए, जी, तो उसको लेकर हम आगे निकल चुके हैं। ਜੀ। ਡਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਲੀਡਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ बहुत ਸੀ। जी, लड़ाई झगड़ा तो होता है जहाँ पर पता है होता है आपको ग्रोथ है, हुँ, वहाँ पे कंपटीशन होता है। जी, कई सालों के बाद जब एक व्यक्ति प्रधान के रूप पर जब जी, काम करता है, जी, तब किसी के प्रति उसकी नाराज़ी होना ज़रूरी होता है। हुँ, ये हो सकती है, जी, लेकिन पार्टी के विचारधारा और जी, पार्टी के जो प्रिंसिपल्स के साथ कोई भी हमारा तबका आज जिस तरीके से कोई भी लीडर जो है, एक साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 6, 7, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਲਓਪੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਊ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋਊ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਤਾ, ਇਸੇ ही ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? नहीं, मैंने ये नहीं बात मानता हूँ कि पंजाब की जनता के साथ जी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण चलना चाहते हैं हुँ, और जिस प्रकार से ये कहीं लंबी एक्सरसाइज के बाद हम लोगों ने कई जिम्मेदारियां अलग-अलग तरीके से कई नेताओं को देने के बाद जिस तरीके की बातें जो आज आप देख रहे हो, वो निश्चित स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बलशाली बनाने के लिए हम यशस्वी रहेंगे। कई लोगों का ये कहना हो सकता है जी, कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है, संगठन है, कई पूर्व विधायक है, वजीर है, कोई नेता है, जी, उन लोगों की दिल की मनीषा कोई हो सकती है। जी, लेकिन सभी पैन पंजाब को ख्याल में रखते हुए जो हाईकमांड के माध्यम से जो एक्सरसाइज की गई, आज हाईकमांड ने उसके ऊपर मोहर लगाकर सभी नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनको अलग-अलग टास्क करके आज आने वाले समय में वो काम की जिम्मेदारी को लेकर बढ़ेंगे। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। नहीं, ये बात कभी किसी ने नहीं कही। ਚੰਨੀ मुझे ਸਾਹਿਬ ਦੇ कोई ਘਰ ਮੀਟਿੰग ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ के? जी, मैं चन्नी जी को के बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं का बताना चाहूँगा कि हुँ, ये इंटरनल पार्टी का मामला है, लेकिन कभी भी चन्नी जी के माध्यम से इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं आई है। नाराज़ी मैंने कहा कि किसी के साथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन पार्टी के हाईकमांड ने जो डिसीजन दिया है, उसको लेकर कहीं और बातें वो करना चाहते थे और जो लोग उस दिन भी उनके परिवार, उनके घर पे मिलने गए, जी, वो उनके पारिवारिक और संबंध रखने वाले जो उनको बधाई देने के लिए गए थे, हुँ। ना ऑफिशियली मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी। ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਈਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਮਿਲੇ ਆ, जी, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ। नहीं, ये बात है, कल भी मैंने देखा कि उनके पास अभी जो मीटिंग का सिलसिला, जी, कल उन्होंने जाते समय उनके घर पे जो मीटिंग हुई, जी, बात इस प्रकार की है कि आने वाले 2027 में हर एक व्यक्ति को अपने अपनी लीडरशिप को, अपनी भविष्य का विचार हाँ, वो कर रहे हैं। जी, और जो रणनीति होनी चाहिए कि आज 117 हलकों में जाकर कैंपेन करने की जिम्मेदारी किसी के कंधे पर दी है। आज हमारे चन्नी जी के नेतृत्व में ये कैंपेन चला जाएगा। चन्नी जी की डिमांड 117 हलके में हम देख रहे हैं। चन्नी जी के साथ पिछले जो कई महीने में 2022 में उनके नेतृत्व में जब सरकार चली, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जब पॉलिसीज बनाई गई थी, पंजाब के जनता के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कुछ पॉलिसी बनाने का काम उनके माध्यम से हुआ था, लोग उनको आज भी याद कर रहे हैं। कई गलतियां हुई थी। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया था। नतीजा कुछ आया, बड़े-बड़े वादे किए थे और उस ज़रिए से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से नीचे आना पड़ा था। जी, लेकिन आज पंजाब की जनता जी, फिर चन्नी जी के वो जो
टेन्योर था उसको याद कर रही है। और यह बात कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनको दिया हुआ मौका जो है, जी। उस मौके में उन्होंने क्या-क्या काम किया था, उसको याद में उनका सपोर्ट समर्थन होना मैं लाज़मी मानता हूँ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਚੰਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? सेम बंदा ही क्यों? जिस प्रकार से अमरिंदर राजा वरिंग जी। जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथ में देने के बाद ठीक है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो आम रास्ते पे आकर लड़ाई लड़ने का काम हो, जी। संगठन को मजबूत करने का काम हो, जी। आज जिस प्रकार से मैं आज हिस्टोरिकल काम जी। पूरे पंजाब पे कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इंडिया में पहली बार कि जिस वोट चोरी को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला उठा के हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाए थे, उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की भी एज ए नेशनल पार्टी बोल के कोई जिम्मेदारी थी। जी। आज पंजाब में 24,668 24,668 बूथ है। जी। उस बूथ को लेकर जब यहां पर काम हुआ कि उस बूथ पर हर एक बूथ पर BLA2 अपॉइंट करना, पंजाब के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ये दोनों मिलकर जिस टाइप कर तरीके से जो काम हो रहा था पूरे अन्य प्रदेश में, यहां पर आकर कुछ लोगों का वोट को काटना, जो आज यहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो सकते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वर्कर साहबान को, ओहदेदारों को, सभी लीडर साहबान को कि ये काम पहली बार पंजाब में हो चुका है। संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से जिस तरीके से जिला प्रधानों का चुनाव करके उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई, उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हो, मंडल कमेटी हो, बूथ कमेटी हो, विलेज कमेटी हो और BLA1 और BLA2, ये सारी काम अगर किसी के टेन्योर में हो जाती है जी। और जो कभी भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से जिस व्यक्ति के नेतृत्व में काम होता है, मुझे लगता है कि जो सभी इसके साथ राय मशुरा कर हमारे हाईकमांड ने ये डिसीजन लिया है। अब लोगों की कोई नाराजी हो सकती है, कई बड़े दावेदार होते हैं। ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, तमाम ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्हीं के क्षेत्र में भी ये काम हुआ है। मैंने कहा कि 117 हल्के में ये काम हो चुका है। रौला तो वही दुख केड़ी गल दा उन्हां नूं कि जिस प्रकार से कहीं अपेक्षा हो सकती है, कहीं किसी के मनमुराद हो सकता है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। जी हम कई बार बैठे हैं, कई रोड़ा नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं पंजाब में राजा वड़िंग और चन्नी, ਤੁਸੀਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी फिर मैं कहीं दिल्ली में जितने सारे हमारे मीटिंग्स हुए, जो हमारे मीटिंग्स होते हैं, इस बात को लेकर हम सभी एक जगह पर आते हैं। कहीं पे कहीं मनमुराद नहीं था। जो बातें हमने कंटिन्यू पिछले महीने से जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, जो हमारे सर्वेज हमने काम स्टार्ट कर दिया है, जिस तरीके से ये लोगों का चयन करके उनको जिम्मेदारी दी है, ये सारी बातें एक जगह पर आकर हाईकमांड की उपस्थिति में और हमारे साथ एज ए इंचार्ज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे बातें हमने करके ही ये डिसीजन लिया है। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਈ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। नहीं, ये सर्वे कोई इंडिविजुअल सर्वे हमने नहीं किया। ये जो सर्वे किया गया है कि आने वाले 117 हलकों में हमारे कैंडिडेट किस प्रकार के होने चाहिए, जो हमारे पास जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पिछली बार चुनाव लड़े हुए जो कैंडिडेट है, जो अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संगठन में अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जो हल्के के इंचार्ज के नाते उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लोग चुनाव का जो चल रहे तो उनके पास जो हमारी बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे पास थे, कई एस्पिरेंट को लगता था कि तो हमारे ऑन मेरिट वी वांट टू सेलेक्ट देम एज द कैंडिडेट ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮਤਲਬ प्रधान ली चेहरा बदलने ली, वो कोई सर्वे होया पंजाब च कि कोई नहीं होया? नहीं, कभी भी हमने कभी भी इस प्रकार का सर्वे कांग्रेस पार्टी प्रधान बदलने के लिए और प्रधान अपॉइंट करने के लिए नहीं किया जाता है। कभी भी इस जो बातें सर्वे जो होता है कि पार्टी की माध्यम से आने वाले चुनाव में हम लोग क्या करके रणनीति बनानी चाहिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन किस प्रकार से हो,
जमीनी आधार पर क्या लोगों के प्रश्न है, उस प्रश्न को क्या किस तरीके से हमने समझकर मैनिफेस्टो किस तरीके से बनाना चाहिए, पब्लिक के लिए गारंटीज क्या देनी चाहिए, इस बात को लेकर हमारे सर्वे चलते हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੀ ਫਿਰ 3 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੀ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਕੰਡ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ प्रोसेस? मैं आपके सामने से आज की बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से ये बातें और ये खबरें चलाई जाती है, हाँ, ये पंजाब एक भूमि है, ये वीरों की, शहीदों की, गुरुओं की भूमि है। हाँ, ये वीरों की भूमि में ये इस भूमि में लोगों जज्बात पे आते हैं, जनता जज्बाती है, हाँ, लीडर्स भी उस प्रकार के जनता मैं देख रहा हूं। हाँ, और ऐसे हालात में हाँ, कोई भी तबका, कोई भी नेता अगर सेटिस्फाइड उसको करने के लिए उसको सबको साथ में लेकर हाँ, जब हम आगे बढ़ेंगे तभी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पंजाब हम जीत सकते हैं। ये आदरणीय राहुल गांधी जी का ये मानना है और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी के डायरेक्टिव्स के ऊपर जी, कई लोगों को अगर सुनने का मौका, कई लोग ये कह सकते थे कि हमें सुना नहीं गया। हाँ। अगर कोई सुनने की बात हो, कहीं उनकी सजेशन देने की बात हो, तो ये सजेशन सुनने के लिए बुलाया गया था। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਣੇ यस। ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ? जी, जी, बिल्कुल ही कतई नहीं। जो नहीं बात आया है? जिस प्रकार से ये बातें हमने बताया हुँ, कि हमारी मैनिफेस्टो कमेटी क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होनी चाहिए, नहीं, हमारी कोर कमेटी किस प्रकार से होनी चाहिए, कैंपेन कमेटी किस प्रकार से होनी चाहिए, संगठन तो एक जगह पर है। आज सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से पंजाब को जीतने की दी गई है। संगठन एक प्रकार से आज राजा वरिंग जी के नेतृत्व में चल रहा है। प्रताप बाजवा जी आज असेंबली में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे जो विधायक दल के नेता के रूप में वो काम कर रहे हैं। आज विधायक दल के नेता और संगठन इसके साथ और एक जो जिनको जिम्मेदारी देकर जो आज पार्लियामेंट में भी आज हमारे सबसे ज्यादा वोटों से पार्लियामेंट में जीत कर आकर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जी, को प्रूव किया है। जी। आज उनका नाम ना बोल के एक तबके में नहीं, पूरे पैन पंजाब में उनकी भी फॉलोइंग ਫਿਰ है। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰੁੱਸੇ ਵੇ ਕਿਉਂ ਆ? मुझे ये आप मीडिया के माध्यम से ही आज ਕਿਸੇ हम रेगुलर ਕਿਸ हमारी मीटिंग ਕਿਸੇ चल ਨੇ रही है ਕੋਈ ਵਧਾਈ डिस्ट्रिक्ट में। ਕਿਸੇ ने ਕੋਈ डिस- ਵਧਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, नहीं, ਕੁਝ भी नहीं होया। मुझे तो जिस कोई प्रकार से कोई रौनक लगी ਤੁਹਾਡੇ दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ? जी आज देखो कि पूरा दफ्तर कल से जिस हमारे कल परसों से जो मीटिंग चल रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट की मीटिंग्स हो रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग हो रही है, जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स की मीटिंग हो रही है, सभी लीडर्स मिल रहे हैं। ਪਰ ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। नहीं, जो कहीं कहीं वो कल ਉਹ का ਤਾਂ जो ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कहता 2 ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ आप ਉਹਦੇ ਘਰੇ देखते ਬੈਠੇ ਨੇ। रहो, आप देखेंगे कि आने वाले समय में आज तो कल से हमने ये मीटिंग का सिलसिला किया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब तक कोई भी पार्टी हम्म, जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगी तब तक वो पार्टी को जीत हासिल नहीं करते। ये पार्टी का सीनियर है जो बढ़ाना, उस लोगों को साथ में लेकर जो पार्टी का जो ग्रास रूट का वर्कर है हम्म, उसको एक्टिवेट कैसे करना और उस किस हालात से में पंजाब में जो सरकार है वो सरकार के साथ वो लड़ रहा है, उसकी बातों को तवज्जो देना, इंपॉर्टेंस देना, ये एज अ इंचार्ज ये हमारी ड्यूटी बनती है, कांग्रेस पार्टी की बनती है। आप पर हमारा सिलसिला वो चालू है, लीडर्स तो उनके नेतृत्व में हम। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी, ਕੀ सबसे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ज्यादा ਕੀ सबसे ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ज्यादा ਲੋਕ? जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सरकार बनाकर दोबारा से जो पंजाब की जो हमारी विरासत थी, हम्म, जो पंजाब को दोबारा से वो स्थापित करना चाहते हैं। हम्म, पंजाब ये एक ऐसी धरती है, प्रताप सिंह केरोसरी का व्यक्ति नेता हम्म, पंजाब की भूमि से हमें मिला, जी, बूटा सिंह जी केसरी का नेता पंजाब की भूमि से मिला, हम्म, ज्ञानी झेल सिंह जी हमारे तब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से उन्होंने नेतृत्व किया। हम्म, पंजाब की हिस्ट्री बड़ी है। हम्म, मैंने आपको बताया कि कहीं उनके समय में भी ये बातें होती थी। हम्म। आज भी आपको पूरी लीडरशिप के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ते हुए काम करते हुए दिखेगी। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2027 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो चेहरा होगा, आज हमने जिस प्रकार से कैंपेन कमेटी के माध्यम से जिनको चेयरमैन बनाया गया, कैंपेन कमेटी ही के माध्यम से पूरे लोग उन्हीं के साथ मिलकर आज पूरे पंजाब में 117 हल्के में जाकर
लोगों के बीच जाकर यही हम सब लोग हमारी टीम बोल के वो काम करेंगे और उनका नेतृत्व चरणजीत चन्नी होंगे। चरणजीत चन्नी जी के नेतृत्व में कैंपेन कमेटी हमने फॉर्म की है और उस कैंपेन कमेटी के माध्यम से ये सब कैंपेन चलाया जाएगा। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਊਗੀ। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी प्रदेश में, मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां पर ये प्रथा हो चुकी है। जी जब भी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चुनावी रणनीति बनाई जाती है जी तो हम अगर संवैधानिक अधिकारों की बात करते हम्म, हैं, देश के संविधान के माध्यम से मिले हुए अधिकारों को बचाने के लिए हम डेमोक्रेटिक के वैल्यूज हम्म। जपना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। पर इस बार चेहरा नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, आज अमरिंदर सिंह राजा वरिंग है, प्रताप सिंह बाजवा है, राणा गुरजीत जी है, आज नहीं, के ये ਤੁਸੀਂ सभी ਇਹ नेता। ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਗੂਗਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਬਸ मैं कभी भी ਹੋਊਗਾ नहीं होਊਗਾ। मैं कभी भी गूगली करने की बात यहाँ पे नहीं आती है। हाँ ये सूबे के प्रभारी के नाते हाँ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी टीम करके आज चन्नी जी के नेतृत्व में हम कैंपेन कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। पर मुख्य मंत्री ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री तो जब हमारी मेजोरिटी आएगी, मेजोरिटी बनेगी, सरकार बनाने के लिए नंबर्स की आवश्यकता होगी, तब जाके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स की चुना विधायक दल का नेता चुनते हैं। आपको पता है कि आज बाजवा जी उस भूमिका में है। ठीक है, आज बाजवा जी लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। आज जिस प्रकार से लैंड पूलिंग का मसला उठ हो, करप्शन का मुद्दा हो, जहां पर कई मुद्दे जो जनता से निगड़ित है, उनके खिलाफ कौन सी पार्टी लड़ रही है? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ जी ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਨੇ ਉਹ जी ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ स्टेज मैं पे नहीं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ। मनरेगा के बारे में मैं पूरे हिंदुस्तान की बात में आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जिस प्रकार से पंजाब में हर एक डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा की रैली, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपनी जो हम उनके ऊपर जो आरोप लगाते थे जी जी कि भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी एक बी टीम है, जी जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी यहाँ पे पंजाब में कर रही है। जी आज उन्होंने जिस मामले में वनडे सेशन, जी एक दिन का सेशन उन्होंने किया था कि मनरेगा को जो मनरेगा के बिल को लेकर, जी आज वही बिल वहां पे स्पीकर ने आपके माध्यम से भी वो चलाया गया था कि स्पीकर ने उसका विरोध यहाँ पे किया था। जी जी उनके ऊपर काफी विरोध भी हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उनको सहयोग भी किया। जी 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 भारतीय जनता पार्टी ने जो रघुजी राम जी का जो नाम बदल के हाँ होना, अधिकारों को कमजोर करना, वर्कर्स के खिलाफ की ये पॉलिसी को हम यहाँ पे लागू नहीं करेंगे, जी इस बात को जो जिक्र किया था, फिर वो आम आदमी पार्टी ने उसी प्रकार का बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर हम जन आंदोलन यहाँ पे विरोध तो करते आ रहे हैं। जितना विरोध हमने उनके खिलाफ किया है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये भी सिलसिला कंटिन्यू चलते रहेगा। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ 2027, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰੇ। जी जाएंगे आप सब, मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं के नेतृत्व में कैंपेन चलाया ਤੁਹਾਨੂੰ जाएगा। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਟੂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ नहीं, ये लड़ना, मैंने कहा कि लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी जो आपस में लड़ेगी नहीं, ਤੇ बैठेगी ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ करवाया था कांग्रेस से लड़ना? नो नो, ये बात मैं आपसे थोड़ा सा असहमति बताता हूँ कि जी। जिस प्रकार से जी ये बातें मीडिया के माध्यम से चलाई जा रही है, इंटरनल कुछ और ही है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਝਗੜਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। जो आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल के बारे में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहना, जी आज उनके पार्टी की बात है, यहाँ पे पंजाब को चलाने के लिए दिल्ली से लोग आके यहाँ पे बिठा दिए हैं। एक बोतल के ऊपर दूसरी बोतल फ्री देने वाली पॉलिसी जो चलाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, पंजाब में आकर नशाखोरी की बात करने वाला
सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर दल कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। जो अरविंद केजरीवाल, जो गांधीवादी विचार के साथ ये आंदोलनकारी एक चेहरा उठ कर आया था, आज उस पार्टी के हाल एक शीश महल में रहने वाला अरविंद केजरीवाल पंजाब को लूट रहा है। जिस पंजाब को जिस हालत में उन्होंने ढकेला है, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर हुआ है, उस पार्टी के नेता को ये अधिकार है ना? हम तो ये पंजाब की जनता ये चाह रही है इनसे छुटकारा पाना। पंजाब के हर एक कमीशन के ऊपर कमिटीज किसको दी, राज्यसभा किसको दी, क्या इन्होंने किया? पंजाब को लूटने का काम किया। पंजाब की जनता को लूटकर जो पैसा उन्होंने बनाया, ये पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? ये जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में लड़ाई होती है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इनकी ये जो पैसा वहां पे उस स्टेट में खर्चा कर कर कांग्रेस पार्टी के वोट्स को बंटवारा करना और भारतीय जनता पार्टी को फायदा करना, ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग काम कर रहे हैं। मैं मनीष सिसोदिया का इस स्टेटमेंट से बहुत ही हूं कि पंजाब में उन्होंने आकर यहाँ पे ये स्टेटमेंट किया था, शाम दाम दंड भेद। किस लिए सत्ता चाहिए? ये विचारधारा वाली पार्टी तो अगर शाम दाम जो 2022 में जो उन्होंने वादे किए थे, उस वादों से वो मुकर चुके हैं। आज भी महिला परेशान है, आज भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो चुकी है। इसके बारे में कोई कह रहा है? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਿਆ 1500 ਰੁਪਿਆ राशन वो सारा कुछ ਅਸੀਂ दे ਦਿੱਤਾ फ्री बिजली देती। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था कि 2022 के चुनाव में जाने के पहले कि हर एक महिला के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। हाँ। आज 4.5 साल खत्म होते आ रहे हैं। 4.5 साल का बकाया आपने देना चाहिए। जो वही मांग हम पिछले 4 महीने से चला रहे थे कि 48,000 दे दो, अभी 57,000 रुपए हमारे हर एक महिला के खाते में आने चाहिए। ये देने की बात उन्होंने करनी चाहिए, तब जाके हम उसको मान सकते हैं। कौन सा वादे के ऊपर ये हो रही है? लैंड पुलिंग एक्ट लाकर क्या करने जा रहे हैं? जब किसान आंदोलन कर रहा था क्या भूमिका थी? राज्यसभा में इनके 7-7, 6-6 राज्यसभा मेंबर हुआ करते थे, लेकिन पंजाब का किसान रास्ते पे आके लड़ाई लड़ रहा था। जब उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, लाठी चलाई जा रही थी, उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, पुलिस केस करवाई जाती, तब ये आम आदमी पार्टी के नेता कहां थे? ਦਲਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ भी दोगे आपकी सरकार 'ਚ वादा करोगे भी इतना जिस दोगे? प्रकार से हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, मैनिफेस्टो कमेटी के माध्यम से हम लोग पंजाब के हर एक तबके, हर एक सेक्शन के पास जाकर जी पंजाब के हमारे शिक्षाकर्मी क्या चाहते हैं, पंजाब की आंगनवाड़ी सेविका क्या चाहती है, पंजाब का युवा क्या चाहता है, पंजाब का किसान क्या चाहता है, पंजाब की महिला क्या चाहती है, पंजाब का दलित क्या चाहता है, पंजाब का पिछड़ा क्या चाहता है, उनके हर एक तबके के साथ हमारा कंसल्टेशन होगा। उन्हीं के साथ हम जाके उनके डायलॉग होगा। जब लोग की डिमांड हमसे हमारे पास आएगी और उसी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा। जनता के लिए हम क्या करना चाहेंगे, जनता को हम क्या गारंटीज देंगे, इसका सभी के लिए इतना राय मशुरा कर कर हमने मैनिफेस्टो की कमेटी बनाई है। मैनिफेस्टो की कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अमर सिंह को हमने बनाया है। आपको पता है कि मनरेगा सरी का कानून जब बनते जा रहा था, डॉक्टर अमर सिंह जी ने उनकी बड़ी भूमिका रही उस एक्ट को पारित करने में, लिखने में, ड्राफ्ट करने में, और आज सीपीपी के सेक्रेटरी के रूप में भी वो काम कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आज पंजाब में किसान परेशान है, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है, करप्शन चरम सीमा पे है। हर एक मुद्दा आज हमारा युवा बेरोजगारी का सामना करते हुए उसके सामने कोई भी भविष्य वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए नशे के साथ जुड़ रहा है। दुख के साथ ये करना पड़ता है कि आज ये हमारे गुरुओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। इस भूमि में ये कभी ऐसा माहौल नहीं था जो प्रताप सिंह केरो के सपनों में जो ये हमने जो पंजाब देखा था। आदरणीय कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माध्यम से दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए इंदिरा जी का कंट्रीब्यूशन, राजीव जी का कंट्रीब्यूशन, सोनिया जी के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकारें बनी, तब ये पंजाब सूबे को, ये देश का ऐसा अहम सूबा है जो 550 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन पे खड़ा होकर ये देश को बचाने का, ये हरित क्रांति जो कि निर्भर करने का, देश को
निर्भर करने का काम ये सूबा करता है। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰप्शन ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ कांग्रेस ने भी बहुत था। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से प्रताप सिंह केरो साहब का टेन्योर उठा के दिखाई, हाँ। ज्ञानी झेल सिंह साहब का टेन्योर उठा के दिखाई, बूटा सिंह सारी का नेतृत्व हमने दिया, ये सवर्ण सिंह जी के नेतृत्व हमने दिया। ये बड़े बड़े नेता आज के दौर में जिस प्रकार से पंजाब यहाँ स्थिति पे लाने का काम, पंजाब की एक स्थिति आपने देखी है, पूरे जनता ने देखी है। उस हालात में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के माध्यम से दोबारा से इस पार्टी को, ये कांग्रेस को और पार्टी के माध्यम से जो किया गया काम है, ये सूबा इसने इतनी अच्छे सूबे से चल रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको खराब करने ਤੁਸੀਂ का काम। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। जी, कांग्रेस के माध्यम से उनको मिली गई जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने उनके जब वो पार्टी छोड़ के चले गए, विचारधारा बदल दी गई, विचार हमारे साथ नहीं है, तो मैं उनका हक क्यों ले? मैं उनका नाम लेने के लिए, की उਦੋਂ ਵਧੀਆ नहीं ਕੀਤਾ जिन कांग्रेस लोगों ने ने 2012 आज ਤੋਂ 7 कांग्रेस पार्टी के वर्कर का खून पसीना छीस कर नहीं ये 2002 जो लोग नेतृत्व किए, जिन पार्टी के माध्यम से ये सरकार चलाई गई, मैं हाँ। आज भी आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद में चन्नी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं ਪਹਿਲਾਂ गई, 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹੇ, मैं 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ। हाँ हाँ सही है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के जो मुद्दे है उसको इंपॉर्टेंस दिया है। इसीलिए जो भी पार्टी छोड़कर चला गया, जी कई कई लोग गए वो मट्टी पले दिखते हैं, उनको कहीं जमीन नहीं मिलती है। सुनील जाखड़ भी गए। सभी लोग, हम्म, मैं एक का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो पार्टी के नाम पर सब कुछ उन्होंने पाने के बाद पार्टी के वर्कर के साथ, विचारधारा के साथ उन्होंने धोखा किया है। आज उनके हालात क्या है? आज कैप्टन अमरिंदर सिंह सरी का व्यक्ति, जिनकी जो लीडरशिप पूरे पैन पंजाब में जानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी सूबे में उनके पूछकर कोई किसी की जिम्मेदारी भी नहीं दी जाती है। ये खुद आकर वो कह रहे हैं। वो कहते थे कि जब मैं कांग्रेस में था मुझे पूछा जाता था, मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, ना पूछकर मुझे डिसीजन लिया जाता है। ये उनके शब्द है। सुनील जाखड़ सरी का व्यक्ति, मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि सुनील जाखड़ सरी के व्यक्ति को आज इंटरन खाद में अगर आप पर्सनली जाके पूछेंगे, उनके हालात जो कांग्रेस में थे तो क्या थे, कि ये कांग्रेस पार्टी सबको सम्मान देने वाली पार्टी है। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਐਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ, ਐਲਓਪੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ? नहीं, मैं एलओपी के बारे में आपको मैं बताऊं कि हर एक असेंबली सेशन में ऑफिशियली मैं कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक दल के जो हमारे मेंबर्स है, हमारा परफॉर्मेंस किस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग लेकर हम लोग हमारी लाइन ठहरते हैं। एक प्रताप सिंह बाजवा जी के नेतृत्व में हमारा जो परफॉर्मेंस है, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तारीफ के काबिल है। कई व्यक्ति है, आज पूरे देश में कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जो मुख्यमंत्री आज हमारे डेमोक्रेटिक मंदिर जो जहां पे विधानसभा उसको कहते हैं, उस मंदिर में विधानसभा में पी कर आता है, नशे में आता है। ये मुद्दा किसी ने अगर उठाया तो बाजवा जी ने उठाया था। करप्शन के मुद्दे को लेकर यहाँ पे कई लोग यहाँ पर जो मुद्दे तो ये उठाते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी का ये हमारा उत्तरदायित्व है। कई बार मौका मिलता है, नहीं मिलता है। कई हमारे विधायक है जिनको बात करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ एक रविंद्र दलवी एक ऐसा सामान्य परिवार से उठकर एक वर्कर के रूप में मुझे राष्ट्रीय सचिव जब बनाया गया, मुझे हाईकमांड ने, मेरे लीडरशिप ने पंजाब सूबे की जिम्मेदारी देने के पहले जो गाइडलाइन लेकर मुझे भेजा गया, 2 साल में कंप्लीट कर रहा हूं जी। 2 साल के अंदर ये पंजाब का हर एक हल्का, पंजाब का हर एक ब्लॉक, 234 ब्लॉक्स है, वहां पे वर्कर के साथ में सीधा जाकर जिस तरीके से मैंने उनके साथ रूबरू होता हूं, जो मेरा एक्सेस मेरे वर्कर के साथ में है, जो मेरे उद्देदार के साथ में है, पंजाब में महीने के 15 दिन से 20 दिन मैं देता हूं, और मैं सभी के वर्कर्स और लीडर के साथ में, ओहदेदारों के साथ में, एमएलएस के साथ में, एमपीज के साथ में वही रिश्ता है। और उनकी सबकी बात को सुनना, जो मैं जमीनी स्तर पर देखता हूं, जो देखना, जो सुनना, वही हाईकमांड तक लेके जाना, ये मेरी क्रेडिबिलिटी है। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਮਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸੰਗ
ਢਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ये रविंद्र दलवी आपके सामने बैठा है। मैं सुबह के इंचार्ज के नाते में आप मुझे बात जब मैं कह रहे हैं तो मैं कभी भी मेरे लीडरशिप ने जो हमारी हाईकमांड ने जो जिम्मेदारी हमको दी है वो सही तरीके से लोगों हाईकमांड तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य मैं समझता हूं और अभी तक वो काम मैं सीधी तरीके से करते आया हूं। आने वाले समय में भी जब भी कहीं कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पे सरकार बनाने के लिए जो भी काम होगा वो जमीनी हकीकत आदरणीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे साहब के सामने रखना ये मेरा कर्तव्य मानता हूं। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ जिस प्रकार से ये कहीं प्रदेश में ये बातें हुई है कई ये ਇੱਥੇ कल्चर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ये पंजाब में लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जो लोग काम करते हैं काबिलियत के आधार पर अगर कैंडिडेट सिलेक्शन होगा ऑन मिनट होगा परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये बारी सारी बातें हो जाएगी। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ये बातें कभी ऐसी नहीं होती कोई किसी का बंदा नहीं होता है कांग्रेस पार्टी का ही होता है कभी एक दूसरे के साथ कभी जो हमारी पार्टी के जो जो एस्पिरेंट्स है कभी ये नहीं कहते कि मैं किसी का बंदा हूं वो कहते कि मैं राहुल गांधी जी का खड़गे जी का कांग्रेस पार्टी का बंदा ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जो जिस प्रकार से मैं पंजाब में काम कर रहा हूं मुझे पता है कि बहुत सारा सामान्य वर्कर है वो चाहता है कि पंजाब को बदलने के लिए वो आतुर बैठा है लीडरशिप भी ये चाहती है लेकिन कुछ बातें मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों की एक विनती करना चाहूंगा कि असली बात जब तक लोगों के बीच जो चलने वाली बात है लोगों के ये आपके माध्यम से चलनी चाहिए। पंजाब की जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ये जो पंजाब चलाया जा रहा है ये पंजाब आगे नहीं बढ़ सकता और दोबारा से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। ये आम पंजाब के लोगों की डिमांड है। चलो हम तुसी कितने दिनों से इकट्ठे कर दोगे इन्हां नूं ये तो जल्दी आप देखोगे कि हम सब लोग एक बस में दिखेंगे 117 हलकों में हम लोग जाएंगे और मैं उनके साथ में दिखूंगा। मैं सभी इसमें से मैं आपको ये बात करता हूं कि कोई भी हमारा नेता चलो शुक्र तुसी ये तो मान लिया भी एक बस च हजे है नहीं देखो तुसी मान गए हो नहीं अभी हम लोग जिस प्रकार से जब भी हमारा यूनिटी बताकर लोगों के बीच जाना है लोगों देखो कोई भी पार्टी है तो उसमें गुमराह करने के लिए कोई बातें चलाई जाती है। हम लोग आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते में ये जब अनाउंसमेंट होने के एक दिन दो दिन पहले ही सभी नेता एक मंच पर बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चन्नी जी थे, राजा जी थे, रंधावा जी थे, उस तो बाद ही गेम बदली। ये सभी लोग यहाँ पर एक जगह पर थे। हमारे विजेंद्र सिंगला जी थे। ठीक है। मैं आपको बताऊं सुखपाल खेरा जी सरी का एक लड़ाऊ व्यक्तिमत्व है। प्रगट जी सरी के व्यक्ति है, राणा गुरजीत सरी के व्यक्ति है। हर पंजाब में हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो पंजाब के हर एक व्यक्ति की भावना जानने वाला, उसके लिए लड़ने वाला, गुरुओं की जो सीख पर लेकर वो काम करने वाले सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास है जिसके दामन के ऊपर दाग नहीं है। कई लोग उनको दागी कराने का प्रश्न करते हैं लेकिन आज 4.5 साल में कोई भी एक व्यक्ति कि कांग्रेस पार्टी के लीडर के ऊपर हो रहे जो भी आरोप हुए जो उनकी आलोचना की गई वो सीधा नहीं कर पाया। पर ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने भी लेके जाने बहुत कुछ अभी तक चलने वाला है। जी पंजाब की जिम्मेदारी जब भूपेश बघेल जी को पिछले साल सवा साल पहले जब दी गई थी एज ए इंचार्ज की उसके पहले मैं काम यहाँ पर कर रहा था। मैं बताऊं कि जिस दिन पंजाब की जिम्मेदारी मिली तुरंत ईडी की इंक्वायरी उनके पास लग गई। ये तो आप जहां पर पंजाब हो या कोई अन्य प्रदेश हो जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है वहां पे कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को डिस्टर्बेंस करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज उसी को साथ दे रही है आम आदमी पार्टी। ਚਲੋ ਡਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਤੁਹਾਡਾ सफल रहूगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप जिस प्रकार से आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से जो पंजाब की जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाते हो मुझे बड़ा गर्व है आपके चैनल के ऊपर। सही बात को लेकर जाते हो, सही बात को आपके व्यूअर ज्यादा हो जाए और जिस बात को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंजाब और पंजाबियत को बचाने के लिए आपके माध्यम से हमें सहयोग मिले।
यही अपेक्षा व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆ ਤੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।